Well, this is a story which has not only had an impact as far as people are concerned, but also the way the government hospitals are being run in Maharashtra has completely been exposed. Now, earlier today, a division bench, and let me give you some details of that, a division bench of the Bombay High Court, which was Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Arif Doctor, they took suo motu cognizance of the matter, not only of the Nanded hospital, but also of the deaths and the horror that we have been reporting from Chhatrapati Sambhajinagar. Both these government-run hospitals where in the last 48 hours, multiple deaths have been reported, 31, and more than in fact 31. Now some estimates say about 35 deaths in Nanded and about 14 to 18 deaths as far as Sambhajinagar is concerned. The court has asked for an urgent hearing tomorrow. They have also asked the state government to furnish details as far as the funds allocated to these hospitals are concerned, and other details like the kind of beds and facilities, medicines which are being provided as far as these hospitals go. Now, important to note here is that the court today also said that these reports which are coming in, that there have been deaths because of lack of equipment, essential medicines, and also beds. This is absolutely unacceptable. Remember, since yesterday, the government has been on defensive. Shinde government has been on the back foot, and they have been coming out and defending, saying that there was no problem as far as the staff or the surgical equipment or other essential medicines are concerned, specifically at the Nanded hospital. Since yesterday evening, we have been bringing out horror stories, visuals which speak for themselves and completely defy and oppose what the government so far has been telling us. So this is a very, very important development, and we are hoping that tomorrow a real true picture of how the government-run hospitals in the state of Maharashtra function would emerge in this urgent hearing. Right. Ankit, please stay on with us. I'm also being joined by our colleague Pooja right now. Pooja, you have been reporting from the hospital. You've spoken to the family members, to people who are there at the hospital, and you've of course brought us these ground reports of absolute horror in the hospital, of how pigs and garbage is strewn all over. Tell us just what the conditions are even as we speak right now. नेहा, कुछ खास बदलाव नहीं है अभी तक। अभी भी जितने परिजन यहाँ पर हैं, उन्हें वही समस्या महसूस हो रही है। अभी भी उनके हाथ में पर्चियां लिखकर दी जा रही हैं कि आप बाहर से दवाई ले आइए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से या फिर कुछ ऐसे संगठन है उनकी तरफ से जैसी ये खबरें इतनी बड़ी हुई हैं, सुर्खियों में आई हैं कि दवाइयों की कमी है, दवाइयों का स्टॉक अस्पताल पहुंचना शुरू हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अस्पताल की दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। बीते कुछ 2-3 महीने से अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में, पूरे राज्य में अलग अलग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में समस्या आ रही है। मुंबई में भी हमने एक रिपोर्ट की थी कि टीबी की दवाई किस तरह से खत्म है, वहां पे शिकायत होनी शुरू हो गई है। तो सरकारी अस्पतालों की बदहाली बीते कुछ 2 से 3 महीने में आप समझे और ज्यादा हुई है, क्योंकि जहां से दवाइयों की खरीदी होती है आपके से, वहां पर कुछ समय से ये स्लो डाउन हुआ था। जो परचेज था उसको लेके एक नई कमिटी बनाई गई थी, नया प्रोटोकॉल बन रहा था, तो उसके वजह से दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा कम हो गया। इसी बीच जो लोकल सप्लायर्स होते हैं, वहां से जो दवाइयों की खरीदी है वो 10% से बढ़कर 40% हो गई थी, लेकिन उसका बजट सैंक्शन नहीं था इन अस्पतालों के पास, तो उनका बकाया बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है। बताया जाता है कि 100 करोड़ से भी ऊपर उनका बकाया है। तो जो लोकल सप्लायर्स हैं अब वो भी दवा नहीं दे रहे हैं। तो जहां से सरकार 90% दवा लेती थी, वहां से भी दवा नहीं आ रही है और लोकल सप्लायर से भी दवा नहीं आ रही है। तो ये एक तकनीकी चीजें हैं जो शायद इस कोर्ट में रखी जाएंगी। और कल भी आप देखें, जो फूड एंड ड्रग फाउंडेशन है, उनकी तरफ से उनके अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया था। तकनीकी सारी चीजें, आंकड़े सामने रखे थे कि कैसे 2000 के करीब जो ऑर्डर हैप्किन की तरफ से पूरा होता था, वहां वो इस मार्च के महीने से अभी तक 10% भी नहीं हुआ है। सिर्फ 10 या 12 ऑर्डर लिए गए हैं। तो कितना बड़ा ये गैप है, आप वो समझिए। और ऐसे लाइफ सेविंग जो ड्रग है वो अस्पतालों में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर तबका वहां पर जाता है। उनके पास 5,000, 10,000 की ऐसी दवाइयां तुरंत बाहर जाकर खरीदने की उनकी हिम्मत नहीं होती। ऐसे में जो तबका यहाँ पर है वो अभी भी वैसे ही परेशान है। अब से 1 घंटे के करीब पहले हमने देखा एक पूरा परिवार वहां पर अपनी पर्चियां लेकर खड़ा था कि हम ये कहाँ से लेकर आएंगे, हमारे पास क्या विकल्प है, अब तो मर ही जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं। तो अब भी वही कहानी है। और सिर्फ अगर दवा की किल्लत और कर्मचारियों की किल्लत इस सरकारी अस्पताल में पूरी की जाती है तो मेरे ख्याल में सिर्फ उससे काम नहीं होगा, क्योंकि बाकी अस्पतालों से धीरे धीरे वही शिकायतें आ रही हैं। सुबह भी हमारे पास एक रिपोर्ट आई नागपुर से कि वहां भी सरकारी अस्पतालों में मौतें हुई हैं, लेकिन वहां से अब जवाब क्या आता है
कि अब एक दिन में अगर 1000 से ऊपर अगर अब 1000 से ऊपर अस्पतालों में भर्तियां होती हैं तो उनके मुकाबले में अगर आप देखें तो मौतों का आंकड़ा ये तो आम है, हमारे लिए इतना होता है जी। लेकिन नीपापोती जो भी हो, सच्चाई जमीन पर यही है कि कर्मचारियों की बहुत कमी है। डॉक्टरों का ट्रांसफर जो अचानक किया गया जुलाई और अगस्त में, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर तबके में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है कि जो आज तक नहीं हुआ ट्रांसफर, वो डॉक्टरों के ट्रांसफर की जरूरत पड़ी क्यों? नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं लेकिन क्या डॉक्टरों की भर्ती हो रही है? क्या उनको इतनी सुविधाएं हैं कि वो डॉक्टर इन सरकारी अस्पतालों में काम करना चाहेंगे? वो भी अपने आप में एक सवाल है। जिस डीन को लेकर यहाँ पर शौचालय साफ करवाया गया, जो पॉलिटिकल स्टंट हुआ, नाराजगी आप देखिए किस हद तक है कि आईएमए की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है, जितने भी डॉक्टर एसोसिएशन उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा कि हम माफी नहीं अगर मांगे तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ के कर्मचारी रो रहे हैं, हमारे कैमरे पे नर्सें रो रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी कम कर्मचारियों के आंकड़ों में वो काम कर रहे हैं और ऐसे डीन भी जो हैं वो खुद पेशेंट को देख रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं वार्ड में, तो बहुत ज्यादा किल्लत है। और जमीन पर अगर आप जाएं तो बहुत चीजें वो कैमरे पे नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ स्टाफ ने आज हिम्मत करके हमारे कैमरे पर चीजें बोली हैं कई घंटों की कोशिशों के बाद, और इन सभी चीजों को मुझे लगता है कि हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेगा और एक हम कह सकते हैं कि एक असर भी है हमारी खबरों का कि इतना बड़ा फैसला हुआ है, कम से कम हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा है।